مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت اور جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم، تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں۔ لیکن مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ بلوچستان کو درپیش مسائل کا حل صرف ڈائیلاگ اور باہمی مشاورت سے ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ بلوچستان ورک شاپ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مسائل کے حل کا بہترین طریقہ باہمی مشاورت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے۔ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ بلوچستان میں مزدوری کرنے والوں کو شناخت کے بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک کا ہاتھ ہے۔ فتنہ الخارج دشمن ممالک سے وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے وسائل پر بلوچ عوام کا حق ہے، ہر صورت انہیں دیا جائے گا۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ دشمن عناصر بلوچستان کی ترقی روکنے اور ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن کے عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے فیصلہ کن رد عمل سے ناکام کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا بلوچستان ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب۔ بلوچستان کے مائدین اور شرکاء کا امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دشمن کے پروپیگنڈے کا بلا جھجک اور جامع انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کر کے بلوچستان اور اس کے عوام کی حقیقی صلاحیت اور ترقی کو اجاگر کیا جائے۔ بلوچستان میں امن آئے گا تو ہی ترقی اور استحکام آئے گا۔ سیکورٹی فورسز کے پولیس کے ہمراہ چند روز کے دوران مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 49 خارجیوں کا صفایا کر دیا گیا۔ ایس پی آر کے مطابق فورسز نے گزشتہ چند روز کے دوران پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشنز کیے۔ سیکورٹی فورسز کے مختلف آپریشنز میں 49 خارجیوں کو مارا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بنو، شمالی وزیرستان اور اکزئی اور خیبر کے اضلاع میں آپریشنز 12 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بلوچستان میں مستونگ، مچ، خزدار اور پنجگور کے اضلاع میں 10 کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 37 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دوران آپریشن اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد تلف۔ صدر مملکت کی جانب سے فورسز کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش۔ کہا کہ دہشت گرد عناصر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو اسپتال سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام۔ کہا کہ تفصیلی طبی معائنے میں بانی پی ٹی آئی مکمل صحت مند قرار پائے۔ بانی کا طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا، جہاں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں سیکورٹی صورتحال پیدا کی، جس کے باعث انہیں پیمز اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے طبی معائنے کے بعد بانی کی صحت کو درست قرار دیا۔ بانی کی ہمشیرہ عظمی خان طبی معائنے اور علاج کے تمام مراحل کے دوران وہاں موجود تھی۔ جناب اسپیکر، ہم نے تو اتنا کہا کہ رولز کو چھوڑے، قانون آئین کو چھوڑ دے، ایک عام قیدی کی طرح اس کا جو رائٹ ہے وہ تو دے دے۔ اگر آپ اس کو رائٹ نہیں دیتے، میں تو ایز اے چیئرمین یہ کہتا ہوں میرا حق نہیں بنتا کہ آپ کے ساتھ اس ہاؤس میں مزید میں بیٹھوں، ان کا بھی نہیں بنتا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جو کچھ ہوا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا حکومتی فیصلے پر شدید رد عمل۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا
कि हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ जो किया इस पर दिल खून के आंसू रोता है। इस सलूक पर मेरा हक नहीं बनता कि अब मैं मजीद इस हाउस में बैठूं। अब मैं मजीद अपने वोटर्स को फेस नहीं कर सकता। इसकी तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। कोई है जो मसाइल का हल नहीं चाहता। बानी पीटीआई के हवाले से हुकूमती इक़दाम नाकाबिल कबूल। अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुकूमतूरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करके हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई है। हुकूमत ने इनकी सेहत पर ड्रामा रचाया। बानी की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज का फैसला बरकरार रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी हुकूमती इक़दाम की मज़म्मत। कहा कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगी। बानी चेयरमैन को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। हुकूमती इक़दामात कबूल नहीं। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। सलमान अकरम राजा ने कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को शिफा लेकर जाना था, ये पिम्स ले गए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त की मजीद तफसीलात सामने आ गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिकॉर्ड में मौजूद वाज़ेह कानूनी गलतियों पर मबनी है। मुजरिम को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के बरखिलाफ है। जेल कवानीन में किसी कैदी को प्राइवेट अस्पताल दाखिल करने का कोई तसव्वुर नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी की हमशीरा की इनसे मुलाकात हुई, वो इनकी सेहत का बता सकती हैं। ज़ाती मौलिज ने इस्तेवान के एक रुकन को बताया कि इनकी आंख अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला बानी पीटीआई को लंबी जिंदगी दे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर बयान। कहते हैं कि इंसानी सेहत सबसे अहम है। सेहत के मामले को जिम्मेदारी और हकीकत पसंदी से देखा जाए। गैर जिम्मेदाराना रवैये और कयास सराइयों से खुद सियासत की साख को शदीद नुकसान पहुँचता है। सियासी इख्तिलाफ और महाजराई अपनी जगह, मगर किसी की सेहत को सियासी मफादात की जंग न बनाया जाए। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने इनिंग्स और 103 रन से मैच जीत लिया। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 103 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की टीम दूसरे इनिंग्स में भी इंग्लिश बॉलर्स के सामने न ठहर सकी। शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15, साउथ शकील 14, अजान ओवैस 9 और खुरम शहजाद 8 रन बना सके। इंग्लैंड की जानिब से जॉर्ज डिंग के तबाहकुन बॉलिंग पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने 409 रन बनाए। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड ने 238 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक ने 91, जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बनाए। पाकिस्तान और कॉन्गो के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए MOU पर दस्तखत हो गए। कॉन्गो के आर्मी चीफ जनरल की क़यादत में वफ्द के फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गौर। कॉन्गो के आर्मी चीफ की एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ से भी मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खुद इन्हिसारी के जरिए हासिल होने वाली नुमायां पेशरफ्त का एतराफ़। मेहमान आर्मी चीफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फरोग के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वसअत देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। गूगल की जानिब से 2026 में पाकिस्तान के लिए 1,50,000 कैरियर सर्टिफिकेट देने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान में AI की रसाई बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दिल की बीमारी जो है वो इतनी बढ़ गई कि तकरीबन हर घर में दिल का मरीज़ मौजूद है। तो ऐसे में एक हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल का, लोगों को सर्व करना, उनका बर वक्त इलाज करना तकरीबन नामुमकिन है। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालफीन पर वार। तकरीब से खिताब में कहा कि एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम करती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है, हालांकि इन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून का मिजाज खिदमत और तरक्की है। जो हुकूमत अवाम का हक दहलीज तक ना पहुंचा सके वो नाकाम है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले कार्डिक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर पंजाब का अवाम के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत फ्री देने का ऐलान। हुकूमत पंजाब हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $50,000 खुद अदा करेगी। मरीम नवाज के इफ्तिताह के बाद जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज मुआलजे का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान के इलाका यमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए दोस्त ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने के लिए तैयार हूँ। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा कि अमरीकी कार्रवाइयों से ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान हुआ। ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी है। ईरान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह हो गया। ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान के साथ जंग नए मराहल में दाखिल। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बयान। कहा कि ईरान पर माशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब हो चुके ईरान की मैशत पर दबाव बढ़ा दिया है। तेहरान फैसला करे कि मैशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत का सूबे भर में पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जामी इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैक डाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर की फौरी तौर पर सख्त चेकिंग और इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बगैर डिजिटाइज रूट परमिट, दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और लाजमी फायर एक्सटिंग्विशर के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज रूट परमिट की तस्दीक की जाए। और पंजाब में एक बार फिर बादल बरसेंगे। PDM में पंजाब ने सुबह भर में मानसून बारिशों के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया।
21 اگست کی شام سے 23 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی. مری گلیات دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. ترجمان PDMA کے مطابق برساتی نالوں میں فلاش فلڈنگ کا خطرہ ہے. شہریوں کے سخت موسم میں احتیاط کرنے کی ہدایت.